Hello everyone, this is Bhavika Arora and today we have with us Srijanita Maurya. So Srijanita is an animal rights protector and she also works for environmental issues and she has also given TED Talks. So hi Srijanita, Hi Bhavika, how are you doing? I'm good and I hope you are doing well too. Yeah, I am too doing good. So Srijanita, I want to ask you that how did you started this journey? Okay, my journey started back when I was 8 years old, being inspired by my mother, how she was kind to animals and how she has always been like have some of her heart for those animals without having any some of sort of greediness of how if it will create a positive or will be a profit for her or not. So same attitude I got, having a kind nature for animals while in COVID-19 period, or you can say Corona period in back 2020. I when we were locked in our houses, I felt like we are still very much protected, but those animals who are roaming outside are having a very miserable life. And so that's the reason where have got an initiative that I should start an organization. At least it can somehow encourage people to work for the animals or work for our environment. Not at very high level, but still with the small steps we can create a big impact. And there where my organization, the Animal Patronage, started. And yeah, currently we are moving with it, having a great impact on more than 6,000 students we have created. सो जैसे आपने बताया कि आप जब 8 इयर्स की थी तो आपने स्टार्ट किया तो जैसे जब हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते अपने लेवल पे तो क्या ऐसे छोटे स्टेप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं और भी एनिमल्स होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे अपनी तरफ से Okay, so I have always told to everyone whenever I go to meetings, ऐसे ही कहते हैं कि छोटे कदम बड़े राह बनाते हैं. So starting from there, I started like from the small impacts you can create a very large impact or very impactful things you can do. So small things like feeding animals. A simple step I always mention to any of the youth whenever they ask me this question, how we can create a like impact with our side. So it's like just in my house, my mom has taught me this. Like in my family, there are 5 members. We are nuclear family. 5 members are there, and usually at night time it will be approximately 10 to 12 chapatis are made. If like today if we are making 10, then my mother usually make one extra, like 11 she do. So 11th chapati is for animals, like outside dogs are there, just she divide it into two parts and feed to them. Two dogs are happy with a half and half of chapati. And just think, if each house start doing this half and half of nature, or from each house one chapati will come out every day, there will be no animals who will be sleeping hungry at night. Everyone will be like, okay, half is there. Many will think like half is not enough for those big animals like cows, buffaloes who are roaming outside. It's not enough. Yeah, I know it's not enough. But still, if you think like if in your society 8 houses they are there, and if all 8 houses start giving half and half chapatis to समथिंग इज four बेटर dogs, देन it will नथिंग be, yeah. So this is how the small steps you can take. In the same way, like in our Diwali season, diyas come out and many other things are there. Like I'm talking about diya, you can take the diya and make out of that you can make it for a vase for filling it with water, so that you can feed the small birds. Keep it on your balcony area, and small birds can feed water from there, eat from there. If you kept some of rice particles, etc., these are the small steps you can take, or the simple step you can take. Just stop using plastic. This is the most simplest step you can do to save our और earth. बहुत It बार will, जैसे काउज होती हैं वो भी प्लास्टिक बहुत ज्यादा खाती हैं yeah, I have seen on the news in Delhi area, one of the cow was Delhi society just took that cow, and when they operated on that, the
that cow was found with the 7 kgs of plastic. Her stomach was equal to a pregnant cow, and people thought she was pregnant, but actually she was having 7 kgs of plastic in her. Just think of the situation of those animals who are roaming outside and they are living because of us, they are having miserable life. So जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे ड्यूरिंग द टाइम, ड्यूरिंग ऑल दीस इयर्स, तो क्या चैलेंजेस थे और आपने उन्हें ओवरकम कैसे किया? Okay, so I will not say about how challenges were very much to me because it wasn't a large amount, but still there were a lot. Like in India, a mentality is there. If someone is into social work or someone is doing social work, then she might not be into studies. Or she might not be doing studies. She or him, whatever I'll say. And the same thing I was faced, like whenever my mom or dad used to tell to someone, like she has this organization and she is working for the animal rights, people will be like, how she is going to focus on her studies and how she is doing, this is something very bakwas thing she is doing. These are the common words I was वो तो ठीक है, पहले able to स्टेबल हो hear. जाओ लाइफ में. Yeah. This was something, so this is what the difficulty I faced, but my mom was one of the most supportive person, I'll say. Because of her, I'm standing like the strongest girl. I'm speaking in front of you because of her only. And she was like, people will keep on saying, if you will become the most successful person of the world also, na, then also in 1,000, one will be there who will be like, you should do this, not this. Someone will be there who will be always giving a negative comment. So take those negative comments as a positive. ठीक है, बहुत अमीर तो बन गए, सिविल सर्विसेज तो दे दो. And take it positive and just move on. You will, if whatever you will doing, you will succeed there. Yeah, just ignore what people are saying. Yeah. वो जनता जैसे अभी हम देख रहे हैं करंटली बहुत सारी स्टेट्स में इंडिया के फ्लड आ रहे हैं और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो फ्लड आ रहे हैं, तो उसके रीजंस क्या है? मतलब मैन मेड भी हैं, कुछ नेचुरल भी हैं, तो उनके मेन रीजंस क्या और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आगे हम प्रिवेंट कर सकें फ्लड्स को और नेचुरल कैलामिटीज को? Okay, so the main reason man-made ही है, कोई natural ज्यादा नहीं बन रहा है, natural man-made से ही natural create हुए हैं, I'll say. So man-made, like you are having a great amount of climate change because of us, a great amount of climate change is taking place. At evening only I was discussing with my mom how the Shimla is being devastated by the flood. And the main reason, like this thing, from Shimla, Ganges river is flowing. And because of our infrastructure creation, or we can say overdeveloped infrastructure, we are like we are thinking like river is all in our control. Whatever, like if we want a river to move from the north, then we can convert it from the north. We can move it to the west. That's what our mentality is made. And because of this mentality, nature is one day will think, just wait, I'll show what power I am holding. In our dharma also, I'll say I'm not like very much, I'm telling about my own dharma because I follow Sanatan Dharma, and I told, like in Sanatan Dharma, we are always told 5 तत्व ऐसे होते हैं जिनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. फायर, वाटर, एयर एंड पृथ्वी तो अपनी और आकाश अपना, इनके साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उस तरीके होते हैं जो शांत होते हैं लेकिन काफी बर्बादी ला सकते हैं. और जो हमने इतना सीखने के बाद भी हम उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. शिमला सबसे बेस्ट एग्जांपल इस समय चल रहा है. 2013 में उतना फ्लड फेस करने के बाद हमने फिर से वही काम किया और आज शिमला बह रहा है. साइंटिस्ट बार बार कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इतना बढ़ रहा है कि कुछ दिन में कच्छ एकदम गायब हो जाएगा गुजरात से. ओडिशा नहीं बचेगा. हम लोग के इंडिया में ओडिशा जैसी कोई जगह नहीं बचेगी, बस ये क्लाइमेट चेंज के कारण, क्योंकि समुद्र आगे बढ़ रहा है. तब भी हम क्लाइमेट चेंज में लगे हुए हैं, कोई कमी हमने नहीं की है. इतना शिमला बहने के बावजूद अभी भी लोग देख सकते हैं, वहां पे लोग घूमने जाएंगे. 2 महीने बाद अगर वो डेवलपमेंट की वजह से हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं बेसिकली. हाँ, और कोविड के बाद आपको याद भी होगा कि कोविड के बाद एक ऐसा फेज आया था जिसमें लोग शिमला में जा रहे हैं.
ऐसा तरीके से हाँ, गए थे कि शिमला भी सोच उसकी रहा होगा वजह कि से क्या दोबारा हो रहा है। कोरोना केसेस राइज भी हो गए थे काफी। हाँ, तो और ये जब सिंपल वो है। कोरोना के टाइम पे जब सब कुछ बंद पड़ा था तो नेचर काफी हील हुआ था। हाँ, उसमें यमुना सबसे बेस्ट एग्जांपल थी देखने के लिए कि नेचर कितना साफ हो गई हील थी हुआ काफी। था। एकदम वही चीज है कि हम जिस एरिया में रहते हैं बनारस में, मतलब हम बनारस से कुछ दूरी पे रहते हैं, लेकिन बनारस में कहा जाता है गंगा में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, जो हम लोग की नेशनल फिश भी है। हाँ, वो नेशनल। उस रिवर डॉल्फिन को 1990s के बाद शायद कभी देखा नहीं अभी तक गया था, लेकिन कोविड का पीरियड ऐसा आया जब ह्यूमंस कंप्लीटली लॉक्ड थे, तब डॉल्फिन्स भी सोची अब समय आया है कुछ बाहर निकल के सांस ले सकते हैं, तो इसीलिए कुछ डॉल्फिन्स को देखा गया था। ये फेज होता है जब ह्यूमंस हटते हैं, ह्यूमंस अपनी काम चीजों को रोके। जब कोविड का पीरियड बेस्ट एग्जाम्पल था दिखाने के लिए कि अगर ह्यूमंस अगर हम कंट्रोल करें अपनी इन एक्टिविटीज पे तो नेचर ठीक हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। क्योंकि हम यूएन में बोलते तो हैं कि हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे एंड ऑल दैट, बट करते कुछ नहीं है एक्चुअल में। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की और इन्वायरमेंट के लिए, तो आपको नेक्स्ट 5 years 10 years या फिर जो भी टाइम स्पैन है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है बेसिकली? स्टार्टिंग विथ माई स्टडीज, तो अभी हम करेंटली मूव कर रहे हैं लंदन में अपनी स्टडीज स्टार्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंस। और many ऑफ यू क्लास फॉरेंसिक साइंस कैसे रिलेटेड है से, तो ये इस तरीके से है कि फॉरेंसिक साइंस के थ्रू हम एनिमल टेस्टिंग पे काम कर सकते हैं, और उसी पे हम काम करने के लिए अगले 5 साल सोच रहे हैं, ताकि मैं अपना पूरा रिसर्च उस फील्ड में रहते हुए अपने इस चीजों पे दे सकूं। तो आने वाले अगले 5 साल एनिमल पैट्रोनेज एजुकेशन और एनिमल टेस्टिंग पे काम करने वाला है, ताकि हम लोग एनिमल टेस्टिंग को रोक के दूसरे तरीके निकाल सके जिससे एनिमल टेस्टिंग बंद हो सके। एनिमल टेस्टिंग, कैन यू प्लीज इलैबोरेट? Yeah, animal testing is like just you're using makeup, and before that makeup comes out, like just say one of the companies, Olay, I'm not like protesting against it, but I'm telling Olay is one of the Olay is one of the company which works very much into animal testing. ओले की ज्यादातर चीजें एनिमल्स पे ही सबसे पहले प्रयोग में आती है, उसके बाद इंसानों के लिए उसको दी जाती है। तो जस्ट थिंक, अगर आप एक खराब चीज को या एक केमिकल को अपने ऊपर डाल के देख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपका जले कटे या कुछ भी ना हो तब भी आप टेस्ट कर रहे हैं ना। और वही रिस्क हम लोग एनिमल्स कुछ बोल नहीं सकते हैं, माउस हुए, रैबिट हुए, ये लोग सबसे काइंड सबसे शांत जानवरों में होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है क्योंकि इनकी स्किन एकदम ह्यूमन स्किन से मिलती हुई होती है। और इसी चीज को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हम काम करें। सो इसका एक है उपाय, मार्केट में है, सिलिकॉन टेस्टिंग इज देयर, where silicon is having the human some compound of human body, so that the जब जैसे फाउंडेशन सिलिकॉन टेस्टिंग में लिया जाता है तो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि ये ह्यूमंस के लिए कितनी हार्श है, कितनी अच्छी है। तो इस चीजों को लाने के लिए, लेकिन वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो एनिमल टेस्टिंग इजी पड़ता है, बस एनिमल टेस्टिंग को ले लिया जाता है। तो इसी चीज को हटा के हम अफोर्डेबिलिटी चीजें लाना चाहते हैं जो अफोर्ड भी कर सके कंपनियां और इन सब चीजों पे रोक भी लगा सके। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो एनिमल्स भी एक्सटेंट हो रहे हैं, अब काफी सारे हो रहे हैं, तो और जैसे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, काफी ज्यादा हीट है, तो जो एनिमल्स हैं जो कि स्नोई एरियाज में रहते हैं, जिनका हैबिटेट ऐसा है कि वो गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकते, तो जो एनिमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं और जो स्नोई एरियाज में रहते हैं, हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ओके, स्नोई एरियाज में रहने सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज रोक दीजिए, बहुत ज्यादा स्नो वो होना रुक जाएगा। क्लाइमेट चेंज कैसे रुक सकता है? क्लाइमेट चेंज आपका कैसे रुक सकता है? एसी यूज करना बंद कर दीजिए। फ्रिज को जो इतने हाई नाइट्रोजन फ्रिज यूज हो रहे हैं, एसी में हाई नाइट्रोजन फ्रिज एसी यूज हो रहे हैं, उन सबको यूज करना बंद करिए, बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन बंद हो जाएगा। और फिर उसके अलावा आपकी फैक्ट्रियों से आग निकलता है, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका कहा जाए कि पंजाब साइड समय आता है, दीपावली के समय पता होगा अगर आप,
पंजाब हरियाणा जैसे साइड एक फेज आता है जिसमें हम लोग के पराली को जलाया जाने लगता है। वो जैसे भारत में हार्वेस्टिंग पोल्यूशन, सीजन होता है। हाँ, वो भारत का उस पीक सीजन पर क्लाइमेट चेंज का वो पीक सीजन रहता है जिसमें सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज होते हैं। अभी कुछ दिन पहले AQI। न्यूयॉर्क एक एग्जांपल बना था, न्यूयॉर्क पूरा येलो हो गया था, कारण क्लाइमेट चेंज था। इतनी टेम्परेचर बढ़ गई थी जिसके कारण न्यूयॉर्क येलो दिख रहा था। तो जस्ट थिंक, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है, तब भी ह्यूमंस उसको ले रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं 2 दिन रहेगा। अभी बाढ़ चल रहा है शिमला में, 2 महीने रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर रेगुलर लाइफ उसके में आ बाद जाना है। फिर हाँ, बैक वही टू सेम। तो इसीलिए ह्यूमंस को ये चीज सोचना चाहिए कि नहीं, ये बैक टू बैक हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो कुछ ही दिन तक रहेगा। मान लीजिए हम अपनी जनरेशन, अगर हमको जीना है तो हो सकता है हम 2050 तक इस चीजों को बहुत अच्छा चल रहा है, बैक टू बैक करते करते हम जी लेंगे। लेकिन आपकी आगे की जनरेशन क्या कहेगी? माई मदर, आई यूज टू टेल टू माई मदर, लाइक हम लोग के समय पे डोडो नाम की एक चिड़िया थी, और फिर कई ऐसे चिड़िया होते हैं जो मतलब हमारा एरिया में देखने को मिलता है। वुडपेकर्स देखने को मिलते थे जब मम्मा लोग छोटे थे, बट अब कुछ भी हम अभी तक नहीं देखे हैं। हम वुडपेकर नहीं देखे हैं, हम डोडो तो मतलब न्यूज पे सुनने के लिए मिलता है कि एक्सटिंक्ट बहुत समय पहले हो गई थी, मम्मा लोग भी उसको दूर जाके देखे हैं। लेकिन वुडपेकर वुडपेकर ऐसी चिड़िया थी जो हम लोग के समय मिलती थी, मतलब तो मम्मा लोग के। जैसे ये रोबोट 2.0 भी जो मूवी है अक्षय कुमार वाली, तो उसमें दिखाया था कि जो ये नेटवर्क्स होते हैं, सिग्नल्स की वजह से एक्सटेंट हो रही है बर्ड्स। तो ये सही में वो रीजन है उनका या कुछ और रीजन है? ये सच में रीजन है। हम कह रहे हैं, मेरी मम्मा अभी जितना बताती है उन लोग के अकॉर्डिंग, इतनी ग्रीनरी थी मेरे एरिया में कि वुडपेकर्स, पैरट्स ये सब इजिली दिखते थे। लेकिन जब से हमारा बर्थ हुआ है तब से हमने नहीं देखा है। हम जितना देखे थे जब हम साउथ में गए, मतलब मेरी हाफ फैमिली वहां रहती है और हम टूर पे गए थे, तो हमने नेशनल पार्क में देखा था कि यार ये सब चिड़िया होती है, ये असली में होती है ऐसी चिड़िया। लेकिन हम अपने एरिया में जितनी कहानियां मम्मा लोग से सुने उसके अकॉर्डिंग हमने ऐसा कुछ नहीं देखा अभी तक है। अपने एरिया की बात हो रही। सो इट कैन बी अ रीजन, क्लाइमेट चेंज इज द ग्रेटेस्ट रीजन फॉर इट। और फिर ये जस्ट एक एग्जांपल नहीं, हम अपने इसको अगर प्रूफ करना है तब भी हम कर सकते हैं। कोविड के समय के कुछ दिन पहले की बात थी कि जब हमारे घर के सामने का इलेक्ट्रिक पोल में जो लाइट, मेन रोड लाइट होता है ना, उसमें ये हम लोग की जो मैना चिड़िया होती है, जो बड़ी वाली ब्लैक कलर की होती है, वो वाली चिड़िया घोंसला बनाई थी। लेकिन एक्स्ट्रा करंट पास होने के कारण वो घोंसला भी गिर गया और जो अंडे थे और 2 बच्चे थे वो सब मर गए थे। तो ऐसे नॉर्मल रीजन। आप तब सोचिए, वो चिड़िया जो देखी, माँ जिंदा रह गई, बस बच्चे मर गए थे। तो वो चिड़िया जो उसने देखा, तो अगली बार कोशिश करेगी कि हम लोग के रेंज में वो बनाए। और उसके बाद फिर नए ट्रेंड्स चले जिसमें लोगों के घर पे गार्डन्स नहीं रहते हैं। हमारे घर में तो गार्डन है जिसमें आम का पेड़ से लेके हर पेड़ मिलेगा, लेकिन हम उसको भी कह सकते हैं क्योंकि हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो अभी भी अर्बन सिटी एरिया है जिसमें सब मिलेगा, मतलब रूरल भी है अर्बन भी है। तो मिक्स होने के कारण, खुद का घर होने के कारण हम लोग की खुद की गार्डन एरिया है, बट स्टिल सिटी एरिया में, दिल्ली तो जैसे वैसे भी एरिया में इतनी हाँ स्पेस ही नहीं होती कि गार्डनिंग हो सके। गार्डन हो सके। और फ्लैट में रहने वाले कोई वही नहीं है रखने का, लेकिन स्टिल यू कैन डू। बड़ा गार्डन ना भी रहे तब भी स्टिल यू कैन कीप स्मॉल पॉट ट्रीज। बालकनी में छोटे छोटे पेड़ मतलब पौधे जो टांग सकते पौधे हैं, टाइप्स लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे चीजें जो हम लोग को दिखेंगी नहीं कि ये कितना इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन ये बहुत इम्पैक्ट करेंगे। छोटी चिड़िया जैसे हमिंग बर्ड और ये सब छोटे पौधों पे घर बनाते हैं, तो आपका छोटा पौधा रहेगा, आराम से वो सब बनाएंगे उन लोगों को। फिर कुछ नहीं कर सकते, बालकनी में 1 मुट्ठी चावल डाल दीजिए, स्पैरो आके खा लेंगी, चली जाएंगी, उन लोग का पूरा डे का फीडिंग हो जाएगी। हम लोग का छोटा स्टेप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। और कहते भी है कि जैसे गर्मियां होती हैं तो बाहर पानी रख देना चाहिए ताकि बर्ड्स वगैरह पी सकें। या ये सबसे बहुत इजी स्टेप्स है। हाँ, अभी आप जैसे बता रहे थे ना कि हमें बर्ड्स देखने तो होती है, तो हम
जहाँ पे भी साउथ वगैरह साइड जाते हो। तो अभी पीछे हम गए थे, जू गए थे दिल्ली के ही, तो वहां पे आधे एनिमल्स थे ही नहीं, तो हाँ, बहुत ज्यादा। वो चीज हम अपने एरिया में भी मानेंगे। अपने एरिया में एक हम लोग का डियर पार्क बना हुआ था। पिछले साल तक तो कम से कम हम कह सकते थे कि उसका बोर्ड लगा हुआ था कि हाँ नाम का डियर पार्क है, लेकिन इस साल तो वो बोर्ड भी गिर चुका है। वो भी हटा दिया। तो ये एक्सीडेंट रेट चल रहा है इस समय, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है, लेकिन लोगों को ये मजाक लग रहा है। अभी जिस चीजों को हम लोग जोक लेके हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, वो आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। कम से कम इस समय अगर कुछ भी नहीं मिला ना, तो शिमला चले जाइए, ये करेक्ट समय है शिमला जाने का। वहां के लोगों से जाके पूछिए आपका घर जब टूट रहा है तो कैसा लग रहा है। हम जब प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ तब उनके बारे में बात करते हैं, फिर जब वो ठीक हो जाती है तो कोई बात ही नहीं करता। हाँ, अभी भी still my mom used to talk in 2004 in my area a flood condition was there, and the flood was so high that my mom used to say it was so fearful mode that they will be like water will come inside our houses, it will not, it will broke, it will not, like this condition was made. So those who have faced, they have some sort of their fearful mind, their mind is made filled with fear. But we are the generation who have faced nothing, we are still living very peaceful life, so we are like we can enjoy anytime, open the AC anytime, sit with the fridge, eat this eat that and sit बस अभी पीछे यमुना का लेवल थोड़ा हाई हुआ था, तब वहां से रिपोर्टिंग वगैरह हो रही थी, तब लोग बात कर रहे थे। अब दिल्ली में भी सबका वही हाल है। या इट्स नॉर्मल। दिवाली आ रही है, अभी फिर बातें उठेंगी, 2 महीने में बातें उठेंगी। नवंबर 12 को दिवाली है कि उससे एक हफ्ते पहले बोलते कि पटाखे बैन कर देने चाहिए, ये कर देना चाहिए, लेकिन अब तो हो ही नहीं सकता। वो बोलने की बात होती है, होता तो है नहीं, फिर भी बचते। तो एक और सवाल मेरा कि जैसे हम दिवाली के टाइम पे कहते हैं कि पटाखे बैन कर देने चाहिए, या फिर उसके बाद केजरीवाल आ जाते हैं बोलने कि चलो ऑड इवन कर देते हैं, तो इससे कुछ फायदा होता है? ऑड इवन का कोई फायदा होता है या नहीं? क्योंकि जैसे बहुत लोग जब दिवाली पे पटाखे बैन होने की बात होती है तो लोग रिलीजन का नाम देते हैं कि अरे वैसे तो तुम लोग इतना पॉल्यूशन करते हो, लेकिन जब हमारे रिलीजन की बात आती है दिवाली पटाखे तो तुम्हें याद आ जाता है कि पॉल्यूशन पॉल्यूशन। तो कितना इफेक्ट होता है दिवाली के पटाखों का पॉल्यूशन में, कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और जो ये ऑड इवन लगाते हैं वो कितना फायदा है उसका? ओके, सो रिलीजन के बात पे हम कहेंगे, हमसे ज्यादा सदार्थ अभी कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। मतलब मेरी फैमिली उस तरीके की है कि छोटी छोटी चीजों पे लड़ सकती है। इन सब रिलीजन की बात पे जब आते हैं तो अच्छी खासी मम्मा की तरह एकदम फियरफुल और क्या कहते हैं एंग्री रूप लेने वाली लेडी कोई नहीं मिलेगी अगर रिलीजन के अगेंस्ट कोई बोल दिया तो। बट स्टिल शी ऑलवेज यूज्ड टू से फायर क्रैकर्स। हम लोग के पुराने भगवान राम जब आए होंगे अयोध्या में तो फायर क्रैकर्स नहीं जलाया गया था, साफ साफ लिखा हुआ रामायण में, दिए जले थे। इस समय कितने घरों में दिए जलते हुए मिलेंगे? इस समय तो लाइटिंग्स ही लग रही है। एटलीस्ट यू कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट फायर क्रैकर्स। Yeah, firecrackers still somehow I'll say in South you will find जब भी कुछ अच्छा होता है तो firecrackers 1-2 जलाए जाते हैं। Actually firecrackers का थीम हम लोग के रिलीजन में, नए रिलीजन में, मतलब नए जमाने में जो रिवोल्यूशंस हुए रिलीजन के लेके, उसमें कैसे आया? पुराने में हम लोग में लिखा हुआ है कि कोई भी खुशी की चीज होती है तो हम लोग में रोशनी होती है और आवाजें की जाती है, मतलब आवाजें आपका ढोल नगाड़ा ये सब बजना। तो उसका एक सिंपलेस्ट उपाय है फायर क्रैकर्स, जिसमें रोशनी भी हो रही है और ढोल नगाड़े ऐसे बज रहे हैं कि कुछ डर की आवाज भी है। तो ये सिंपलेस्ट चीज है, तो इसीलिए लोग शुरू कर दिए फायर क्रैकर्स। वो सस्ते में मिल जाता है, आराम से हो जाता है। बट स्टिल यू कैन से भगवान हम लोग को कुछ भी करने के लिए वो नहीं कर रहे, फोर्स नहीं कर रहे हैं। और कुछ चीजें हम लोग समय के अनुसार बदल जानी चाहिए। समय के अनुसार कई ऐसी चीजें हैं जिनको बदल लेनी चाहिए। इसका चीज है, गंगा नदी में हम लोग पूजा करने जाते हैं, लोग डुबकी ले लेके पूजा कर रहे हैं, उसी में फूल अर्पित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और उसमें अगर टोक दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम पूजा नहीं करें, ये क्वेश्चंस आते। बट
पूजा तो कर रहे हो, लेकिन जिस नदी को आप अपना माँ मान रहे हो, जिस नदी को कह रहे हो कि गंगा हमारी उसी देवी को है, गंदा गंगा कर रहे हो। उसी को गंदा कर रहे हो, तो अब इससे ज्यादा बुरी चीज आपको कहाँ मिलेगी। यमुना को आप माँ मानते हैं, यमुना की पूजा करते हैं, लेकिन यमुना उस कदर से गंदी हुई है कि उसके पास भटकना मुश्किल हो रहा है। और ये उसके तो है। बाद कोई कुछ आपको कहे तो आप उसको कहेंगे कि हमारे धर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे धर्म के विरुद्ध आप जा रहे हैं। हम सबसे सिंपल कहते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग हम अगर बोल रहे हैं ना, तब हमको कोई नहीं कुछ कह सकता कि हम धर्म के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली उस हिसाब की धार्मिक है कि जहां हम लोग को बचपन से रामायण गीता पढ़ाते हुए आया है। तो हम धर्म के अकॉर्डिंग चलते हुए सही राह पे चलना बता रहे हैं। सो धर्म के अकॉर्डिंग नहीं, भगवान के लिए आप कर सकते हैं। भगवान साफ है, देश साफ है, धरती साफ रहेगी, तभी भगवान की पूजा हो पाएगी। हम रैप अप करेंगे मीटिंग को लास्ट क्वेश्चन के साथ कि जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? So it's like to all who are listening, remember that the journey of 1,000 miles begins with a single step. छोटे कदम ही बड़े राह बनाते हैं. Embrace your voice and passion, for they possess immense potential to drive change. Challenges are inevitable, but they are stepping stones to grow. Let us unite in creating the world where the animals are respected, environment flourishes, and the power of youth harnessed for the brighter future. And thank you so much for joining me on this remarkable journey of making a lasting impact. Together we can, and we will make a great change in this world. I believe that. Thank you very much to Janita for joining us. It was a lovely time It's my talking to you. pleasure. It's my pleasure to join you all. Thank you so much for inviting me here.